جس طرح کہ آپ کے ارکان کو بڑے ایوان بالا سے غائب کیا گیا تاکہ کہیں تو آپ کی آواز موجود ہو. میرے خیال میں میری آواز جو یہاں پہ اٹھتی ہے اس ایوان میں جو نہیں اٹھ پاتی. وہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو ایک فیصلہ جو میں کرتا ہوں. بھائی ٹھہرو بھائی. ہو گیا بھائی. آئینی ترامیم میں اگر ہمیں جنت کا بھی راستہ دکھایا جائے تو ہم اس آئین کا حصہ نہیں، ترامیم کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک کہ ہمارے لوگ، ہمارے ممبران واپس نہیں آتے. جنرل مشرف کے دور میں گن پوائنٹ میں ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کیے. تو یہی ووٹ کی عزت ہے. اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہم کو سڑکوں پر نکالا. ان ترامیم کا خالق کون ہے؟ ان ترامیم کا خالق کیا حکومت ہے؟ حکومتی اتحادی ہے، اپوزیشن ہے، یا وہ قوتیں ہیں جن سے ہمیشہ اس آئین کو خطرہ رہا ہے؟ اس ملک کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ سینٹ کا ممبر ہو، چاہے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو، چاہے قومی اسمبلی کا ممبر ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور میرے خیال میں اب سب کے لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ وہی راستہ اختیار کریں جو میں نے 3 سپٹمبر 2024 کو اختیار کیا تھا. ہمارے پاس راستہ کون سا بچا ہوا ہے؟ ہم جائیں اپنے لوگوں کے پاس، ہم جائیں گے بلوچستان کے لوگوں کے پاس اور ان سے فیصلہ لیں گے کہ ہمیں اب کون سی سیاست کرنی ہے، کیونکہ اس سیاست کے بارے میں اپنے لوگوں کو اب قائل نہیں کر سکتا. یہ جمہوریت نہیں ہے بھائی، یہ پٹ جمہورہ ہے. یہ پٹ جمہورہ ہے بھائی. اور جو ڈگڈگی بجانے والا ہے جو ہے نا، وہ یہاں کے سیاستدانوں کو نچار رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ ایک آدھ مہینے سے جو ہنگامی صورتحال ہے اس ملک میں، اور جس انداز میں خفیہ طریقے سے آئینی ترامیم 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے، اور پورا ملک جو ہے اسٹینڈ سٹل کی جو ہے نوعیت پہ آ کے کھڑا ہوا ہے. تمام تر توجہ کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ پہ لگی ہوئی ہے. مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ وہ 1973 کا آئین جس کو 51 سال ہو چکے ہیں، کون سی ایسی مصیبت یا ایمرجنسی آن پڑی جس کے لیے راتوں رات خفیہ اندازوں میں اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت آن پڑی. اور وہ ایسی ترامیم جن کو پبلک کرنا بھی حکمران اور اس کے طبقوں کے لیے جو ہے باعث سے شرم ہو رہا ہے، جس کو وہ خود پبلک نہیں کرنا چاہتے، جس کو پبلک کرنے سے جو ہے وہ خود شرما رہے ہیں. وہ آئین کوئی خفیہ ڈاکومنٹس نہیں ہوتی. ملک کے ہر شہری، ہر باشندے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے اس کا کسی طبقے سے تعلق ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ جس ملک کے آئین میں ترامیم کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں اس کو علم ہو، ان پولیٹیکل پارٹیوں کو اس کے بارے میں علم ہو، ان پولیٹیکل پارٹی کے ان ورکروں کو اس کا علم ہو. لیکن یہ عجیب سی بات ہے کہ آئینی ترامیم کو ایک سیکریٹ ڈاکیومنٹس سمجھ کر انہوں نے اس کو خفیہ رکھا، اور وہ مختلف اقسام میں جو ہے تقسیم ہو رہا ہے. کبھی کسی ایک کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے، کبھی دوسرے کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ترامیم کا خالق کون ہے؟ ان ترامیم کا خالق کیا حکومت ہے؟
हुकूमती इत्यादी है, अपोजिशन है, या वो कुव्वतें हैं जिनसे हमेशा इस आइन को खतरा रहा है, वो कुव्वतें जिन्होंने हर वक्त इस आइन को एक कागज का टुकड़ा समझकर रद्दी की टोकरी में फेंका है। हम किसी भी ऐसी आईनी तरामीम का न पहले हिस्सा बने न अब बनेंगे जो बजोर ताकत। मैं बाहर था मुल्क से, जब मुझसे राब्ता किया गया कि जी आप इन आईनी तरामीम में हमारा साथ दें, मैंने तो वाज़ेह कह दिया मैं तो बेरोजगार हूं भाई, मेरा जो रोजगार था वो आप लोगों के हवाले कर दिया, मैं इस्तीफा दे चुका हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आईनी तरामीम, हमें तो पता तो होना चाहिए इसमें तरामीम आप कौन सी लाना चाहते हैं। जो ड्राफ्ट ना प्राइम मिनिस्टर मुझे भेज सका, ना ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भेज सका, और उन्हीं मुज़ाकरात के दौरान हमारे सेनेट के जो दो मेंबरान हैं उन पर दबाव डाला जा रहा था, उनके जो कारोबार हैं उनको बंद करने की कोशिश की गई, उनका जो रोजगार है उनको उनसे छीनने की कोशिश की गई। तो मैंने उनसे वाज़ेह तौर पर कहा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में गन पॉइंट में हमने कोई मुज़ाकरात नहीं किए। तो यही वोट की इज्जत है। इसी वोट की इज्जत की खातिर आप लोगों ने जो है हमको सड़कों पर निकाला, इसी वोट की इज्जत की खातिर आप लोगों ने जो है हमारे साथ इत्तेहाद बनाए। उनकी फरियाद आपने खुद असेंबली में सेनेट के इजलास में सुनी होगी कि वो खातून उस इजलास में बात तक नहीं कर सक रही थी। पिछले महीने जो मैंने सितंबर की 3 तारीख को जो मैंने यहां पर इस्तीफा दिया था, उस बात को उन्होंने खुद इंडोर्स किया है कि इस मुल्क के पार्लियामेंट में बैठे हुए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सेनेट का मेंबर हो, चाहे सूबाई असेंबली का मेंबर हो, चाहे कौमी असेंबली का मेंबर हो, उसकी कोई हैसियत नहीं। और मेरे ख्याल में अब सबके लिए ये वक्त आ गया है कि वही रास्ता इख्तियार करें जो मैंने 3 सितंबर 2024 को इख्तियार किया था। अब भी मैंने मौलाना साहब से भी अर्ज किया, बिलावल साहब भी यहां पर आए थे, कि हम किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे कि हमें कौन सी आईनी तरामीम चाहिए, उसमें हमें अगर उस आईनी तरामीम में अगर हमें जन्नत का भी रास्ता दिखाया जाए तो हम उस आइन का हिस्सा नहीं, तरामीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक कि हमारे लोग, हमारे मेंबरान वापस नहीं आते। फिर बैठ के हम बात करेंगे उनसे, फिर हम ये तय करेंगे कि आया उस आईनी तरामीम का हम हिस्सा बनते नहीं बनते। क्योंकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उस अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है जिसमें पीटीआई भी है, जिसमें पश्तूनख्वा भी है। हम उनसे भी मशवरा करेंगे कि आया उस आईनी तरामीम, पहले तो हम देखेंगे उस आईनी तरामीम है क्या हमारे लिए। वो इतना बड़ा 73 का आइन हमारे लिए कुछ ना कर सका, उसमें लाई गई चाहे 26 तरामीम हो, चाहे 100 के करीब तरामीम हो, वो हमारे लिए कौन सा फ़ायदेमंद हो सकती है, उसको फिर हम देख के वो फैसला करेंगे। लेकिन इस वक्त किसी भी मुज़ाकरात का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। देखिए, मुझसे रब्ता हुकूमत में शामिल जो आपकी जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अब हुकूमत उनकी है उनकी नहीं है ये मैं नहीं बता सकता, वो उनसे पूछें। और डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, उन्होंने रब्ता किया। तो आप दबाव में वापस आए? दबाव में नहीं, मैं एहतिजाजन आया हूँ अपने उन मेंबरान के साथ यकजहती करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कि पार्टी इस सख्त वक्त में उनके साथ खड़ी हुई है। सरदार साहब, बतौर एहतजाज क्या आप कौमी असम्बली में दोबारा भी वापस जा सकते हैं ताकि आप वहाँ पे अपनी ये आवाज़ उठा सकें, जिस तरह के आपके अरकान को बड़े ऐवान बाला से गायब किया गया ताकि कहीं तो आपकी आवाज़ मौजूद हो? मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ जो यहाँ पे उठती है उस ऐवान में जो नहीं उठ पाती, वो मैंने पहले ही कह दिया कि जो एक फैसला जो मैं करता हूँ, भाई ठहरो भाई,
हो गया भाई। जी साहब आप पार्लियामेंट के अंदर और पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, किस किस्म की सियासत करना चाहते हैं? देखें, हमारे लिए तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। पाकिस्तानी सियासत में तो हम आए, हमने ये पार्लियामेंट पाकिस्तान का पार्लियामेंट था। नेशनल असम्बली पाकिस्तान की नेशनल असम्बली है। ये सेनेट जो है इस मुल्क का एक आईनी इदारा है, उसमें बैठ के हमने अपनी बात की। जब हमें 2024 के इलेक्शन में वहाँ से हमें धकेला गया और उसके साथ साथ जो रवैया बढ़ता गया, हमारे पास रास्ता कौन सा बचा हुआ है? हम जाएं अपने लोगों के पास, हम जाएंगे बलूचिस्तान के लोगों के पास और उनसे फैसला लेंगे कि हमें अब कौन सी सियासत करनी है, क्योंकि इस सियासत के बारे में मैं अपने लोगों को अब कायल नहीं कर सकता। सरदार साहब, आपके 2 सेनेटर तो गायब हैं, तो किसको आप कहेंगे कि आप मेरे वाला रास्ता अख्तियार करें और वो इस्तीफा दे दें? जो अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जी इस रियासत और इस जमहूरी कल्चर से उनको ये जमहूरियत नहीं है भाई, ये पुट जमहूरा है। ये पुट जमहूरा है भाई। और जो डुगडुगी बजाने वाला है जो है ना, वो यहाँ के सियासतदानों को नचा रहे हैं। अगर वोट पूरे नहीं होते हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, आज वो क्या पैगाम लेकर आए? भाई वो दूसरा रास्ता तो हमारे लिए आज का नहीं, बहुत पहले से हम लोग आज वो मौलाना साहब के साथ मिलने आए थे। हमने अपना गिला शिकवा किया कि जो भी, चाहे वो इस अमेंडमेंट के साथ है, जो अमेंडमेंट का हिस्सा है, या वो इस अमेंडमेंट का के लिए कैंपेन कर रहा है, हमारे लोगों को उस अमेंडमेंट में वोट डालने के लिए उठाया गया है, तो वो सब के सब इसमें बराबर के शरीक है। साहब ये फरमाइएगा कि अगर हुकूमत आपके अरकान से वोट लेने में कामयाब हो जाती है तो फिर आपका उनके हवाले से क्या एक्शन होगा? देखें, वोट वो अपनी पार्टी ने फैसला किया है कि हम वोट नहीं देंगे। अगर वो जोर ज़बरदस्ती वोट ले रहे हैं तो मैंने कहा कि उस जिस तरह 18 तारीख तो इस तरामीम का नाम भी चेंज करें, फिर उस पर पार्टी फैसला करेगी कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। मेंगल साहब, बिलावल के पास दूसरा रास्ता है, आप लोगों के पास दूसरा रास्ता कौन सा है? हमारे पास बहुत से रास्ते, बलूचिस्तान में आप आए, आपको बहुत से रास्ते मिलेंगे। तीनों बड़े बैठे थे, तो क्या ये तय हुआ कि पहले अरकान छोड़े जाएंगे? बिलावल साहब ने भी इस बात से इत्तेफाक किया। ये हमारी डिमांड है जी, ये हमारी डिमांड है कि हमारे लोगों को छोड़ा जाए, फिर हम बैठ के बात करें, सबको कहा जाए।